a few words about the strength of all women empowerment. I would like to welcome you all to the Shakti Suraksha Seminar on the occasion of International Women's Day 2022, organized by Samashray Foundation and Hansraj Public High School. We all know that International Women's Day is celebrated on 8th March every year. It's a day when women are recognized and appreciated for all their hard work and dedication in various fields. We all know that there are some countries where women don't get equal rights. They are limited to only household work. However, this needs to change because we all are humans and should be treated equally with equal rights. Women are the one who brings life, and every woman is special no matter where she works, whether it's a home or office. It is said that where there is a will, there is a magic. Where there is a woman, there is a magic. But in reality, we don't need magic to change the world. We carry all the power we need inside ourselves already. We have the power to imagine better. There is no limit to what we as women can accomplish. It is also said that strong women don't have attitudes, they have standards. I am grateful to be a woman. I must have done something great in this life. Thank you so much. Now, I would like to call Kiran ma'am to proceed this event. थैंक यू सर मैम। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है। यह वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है, जो घर को स्वर्ग बनाती है। माय सेल्फ किरण पांडे, माननीय अतिथि, आदरणीय अध्यापक और मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप सभी को मेरी तरफ से महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। महिला दिवस हर साल 8 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं और पुरुषों में समानता लाने और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। महान विद्वान स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि दुनिया के कल्याण के लिए कोई अवसर नहीं है जब तक कि महिला की स्थिति में सुधार न हो। पक्षी के लिए केवल एक पंख पर उड़ पाना संभव नहीं है। आज देश की महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं, उसने अपनी सोच को बदल दिया है। आज की महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। कोरोना जैसी विश्व महामारी में स्वास्थ्य, जरूरी सेवाएं, शिक्षा, देखभाल कर्मियों और अन्य भूमिकाओं में महिलाएं अपना अहम योगदान दे रही हैं। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा महिलाओं का सम्मान करें, उन्हें आगे बढ़ने को प्रेरित करें। धन्यवाद। आई वुड लाइक टू कॉल मुस्कान मैम टू प्रोसीड दिस इवेंट। Thank you, Kiran ma'am. On this day, we are having successful women and ideal personalities to motivate the entire society. She is a well-known dentist, cosmetologist, social activist, and menstrual hygiene educator. She is among the top 51 most influential women in India and awarded countless prestigious awards. The world is full of diamonds and gems, and we are having some of them here today to build this seminar. With this note, I would like to give my hardest welcome to Dr. Kanika Wadhwa. Give a big hand to welcome her. Hello everyone. Good morning students and teachers. We have gathered here for a very beautiful event today, that is on account of Women's Day. So it is a belated event. How was your Women's Day anyways? You enjoyed it? You celebrated? I think every day is a Women's Day. That is of course again a beautiful thought. But we need one day to feel special, to be acknowledged, like it's on our birthdays, same day. So these days, that day is not to make us feel empowered. I feel women are already empowered. They already have power. It is just a day to acknowledge their power. In that way we can say.
So you are all are from 9 to 10 standard. Yes, girls are yes, there, na? Great. So you must all be like 15, 16. What are your age groups? 14 to 16. 14 to 16. Great, great. So today we'll be more specific and we'll talk about periods, menstruation, and we'll make it an interactive session. I don't want it to sound like a boring lecture or that I'm speaking and you are just listening. फिर क्या होगा? After half an hour, half of you will speak, which I don't want. So we'll make it very interactive. We'll talk and nobody will feel hesitant about it. Let's talk. अभी यार इस सेशन के बाद ना कोई मन में क्वेरीज नहीं रहनी चाहिए, मतलब कोई डाउट्स नहीं रहने चाहिए, कोई फियर नहीं रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम जो आप फेस करते हो वो अननोटिस नहीं जानी चाहिए आफ्टर द सेशन. दैट शुड बी एन ऑब्जेक्टिव. फॉर दैट आई नीड योर सपोर्ट. फॉर दैट आई नीड यू टू बी इंटरैक्टिव एंड ओपन अबाउट इट. ओके, सो फर्स्ट वी विल टॉक. आई आस्क वन बाय वन टू ईच वन ऑफ यू. What do you think period, like in one word, how will you explain it? Just one word. Like I'll give you example. If I have to explain it, I will say it is a power. Right? It is power which you have, which men don't have. Okay? Why I am calling it as a power? Because जिस दिन आपको periods होते हैं या आपका menstruation start होता है, that is starting of your womanhood. उस दिन आप एक लिटिल वुमेन बन जाते हो और आप गॉड मेक्स यू रियलाइज योर पावर दैट यू कैन क्रिएट अ लाइफ. राइट? सो इट इज अ पावर. वन वर्ड में बताओ कुछ और. व्हाट यू फील, व्हाट इज पीरियड? पेन. ओके, हाँ, बी ओपन अबाउट इट. चाहे पेन बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, पर क्या आप बोलो, कुछ भी बोलो. आपको क्या लगता है व्हाट इज पीरियड? इरिटेशन. अभी सब नेगेटिव आ रहा है. चलो, पेन, इरिटेशन अभी हम डील करते हैं. और एनीबडी एल्स? पेन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, मूड स्विंग्स, हाँ, और लेजीनेस, लेथार्जी. ये तो सब नेगेटिव आ रहा है. और कुछ एनीथिंग पॉजिटिव यू फील अबाउट इट? एनी वन थिंग की कुछ पॉजिटिव भी लगता हो आपको? कुछ भी नहीं लगता? फिर तो आज सेशन की बहुत ही जरूरत थी. नहीं लगता कुछ भी पॉजिटिव? अच्छा, चलो हम बताते हैं. अगर मेरे को आप वन वर्ड में पूछोगे ना तो पीरियड इज अ माइलस्टोन. आपने छोटा बेबी देखा है? छोटा बेबी पहले वो लेटा हुआ होता है, वो बैठ भी नहीं सकता. देन किड लर्न्स टू सिट, देन दे लर्न टू स्टैंड अप, देन दे लर्न टू वॉक. सो यू फील हैप्पी अबाउट इट. खुश होते हो ना कि बेबी बड़ा हो रहा है. तो पहले जो एक गर्ल होती है, जब एक छोटा बच्चा होता है 4 इयर्स 5 इयर्स का, उसके बॉय कट होते हैं और उसको कोई ऐसे क्लोथ्स पहना दो जो गर्ल्स और बॉयज दोनों पहन सकते हैं. क्या पता लगा सकते हो दैट बॉय है, गर्ल है? नो, बेबी है वो. राइट? फिर आप बड़े होते हो तो आपके अंदर चेंजेस आते हैं. यू अंडरगो लॉट ऑफ चेंजेस. वी कॉल इट प्राइमरी चेंजेस एंड सेकेंडरी. दैट मेक्स यू गर्ल और अ बॉय. ठीक है? कुछ तो हम खुद लाते हैं, नए बाल बढ़ा लिए, है ना, सुंदर से क्लिप्स लगाए और फेमिनिन हम एक्ट करते हैं. ये तो हम, these are all external. Some are internal changes like your hair growth starts in your axilla, है ना, in your groin region. And apart from that, जैसे boys की voice जो होती है वो थोड़ी हल्की हो जाती है ना. ऐसी गर्ल्स में क्या चेंजेस आते हैं? उनकी बॉडी कर्वी हो जाती है थोड़ी. राइट? Another change is you start feeling discharge from your private area, right? So this is another change. अब जब periods होते हैं, that is a milestone. That as I told you that you enter womanhood. Once you enter womanhood, so you should celebrate now. Why you should be feeling negative about it? अब एक बच्चा ऐसे उदास बैठ जाए, ओहो अब तो मुझे चलना भी पड़ेगा. ये क्या? ये तो मैं तो अच्छा था, लेटा रहता था, प्राण में घूमता रहता था. तो ये तो फिर उस बच्चे ने अपने आप को लिमिट कर लिया. उसने चलना सीखा क्योंकि वो बहुत कुछ कर सकता है. लाइक दैट पीरियड्स आए, अब हम सैड हो जाए, यार ये क्या हो गया, ये तो मेरी तो बहुत अच्छी लाइफ थी, ये हर महीने का क्या शुरू हो गया. नो, इट्स अ पावर, यू शुड सेलिब्रेट इट. गर्ल्स हु डोंट गेट इट till like
Anybody who has not yet got her period अभी? It's nothing to be ashamed of. ऐसा कुछ नहीं है. कोई ऐसा बच्चा है अभी जिसको भी स्टार्ट नहीं हुए? Anybody? अच्छा, अगर नहीं भी हुए तो फिर होने वाले होंगे first of all. और what I mean to say is that it is a blessing. So don't feel negative about it. और एकदम से उसको पेन या इरिटेशन मत सोचो. I'll tell you the ways to deal with it. So you need not be worried about it. You need not feel sad about it. Just celebrate your womanhood. Celebrate your power. It is power that God has exclusively given to females. ठीक है? It is a sign. Every month God reminds you that you are creator. You have power to create life, right? तो इसलिए अभी ऐसा नहीं सोचेगा कोई भी. It is a milestone. अगली बार कोई पूछे तो माइंड देखो जैसा आप सोचोगे ना वैसा ही होगा. आपने कहावत सुनी है हैप्पी गो लकी. जो लोग खुश रहते हैं ना वो लकी रहते हैं. जो बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं, हर चीज़ को लेके परेशान होते हैं, क्रिप करते हैं, उनके साथ फिर प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हो जाती है. ऐसे नहीं सोचना है, ठीक है? चलो अब नाउ वी टॉक अबाउट एक एक करके ना वी टॉक अबाउट 5 थिंग्स. उस टाइम पे न्यूट्रिशन कैसा रहना चाहिए, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, देन जनरल हाइजीन एंड देन मेंस्ट्रुअल हाइजीन. वील टॉक अबाउट दीज 5 थिंग्स वन बाय वन. जल्दी जल्दी ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? सबसे पहले व्हाट इज द राइट एज? देयर इज नो राइट एज. एक रेंज होती है लेकिन सेम कुछ नहीं होता है. ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी मम्मा की जो एज में हुआ था वही एज में आपको होगा. 2 आइडेंटिकल ट्विंस भी होते हैं ना, आपने ट्विंस देखे? कई एक आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं जो बिल्कुल सेम होते हैं, दैट एग्जैक्टली सेम. उनके भी पीरियड डेट सेम नहीं हो सकते. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज स्टॉप कंपेयरिंग. Never ever compare yourself with your friends, with your sister, with your mother or with anybody. कि आपको 7 days होता है, मुझे 4 days क्यों होता है, या आपको इतने दिन में होता है तो मुझे इतने दिन में क्यों होता है. No, you are unique, your body is unique. हर फिंगरप्रिंट डिफरेंट होता है ना, हर बॉडी भी डिफरेंट होती है, ठीक है? फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, यूजली पहले लेट होता था. जैसे हमारी मदर्स वगैरह उनको menarche onset of menstruation, menopause जब पीरियड्स बंद होते हैं. तो menarche और menopause जल्दी लेट होता था. लाइक हमारी मदर्स स्पेशली सबकी मम्मी, आपने सुना होगा अपनी मम्मा से, हमें तो 10th 11th में हुआ था, मैं तो कॉलेज गई थी तब हुआ था, ऐसे बोलते हैं ना. ऐसा होता था. अभी चीज़ें बदल गई हैं. पहले menopause भी 45 to 50 ईयर्स में होता था, अभी अर्ली 40s में हो जाता है. तो थिंग्स आर चेंजिंग but not necessarily for everybody, so you need not feel anxious about it. चिंता नहीं करनी है कि क्यों नहीं हो रहा या क्यों जल्दी हो गया. It's not in your hands. आपने देखा ना किसी बच्चे के दांत तो बहुत जल्दी निकल जाते हैं. छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, कईयों के दांत बहुत दिन में निकलते हैं. तो उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है. फर्स्ट थिंग, कितने दिन के लिए होगा उसमें भी चिंता करने की बात नहीं है. आई एम टेलिंग यू एवरेज फॉर एवरीथिंग. Nowadays average period age is 9 to 11 years. Mostly. ठीक है, my daughter is about to be 13. She has not got her period yet, so there is nothing to be worried of. Till 15 years, if you don't get your period, you should consult your doctor once. तब एक बार consult कर लेना चाहिए. It doesn't mean that you have some problem, just to be on safer side, right? Just to get rid of that anxiety कि क्यों नहीं हो, ठीक है? Another thing, how long is your cycle? It is for about 2 to 2. It can be as less as 2 days. It can be as more as 10 days. So 2 और 10 days के बीच में कुछ भी है, you need not be worried about it. ऐसे बैठ के रोना नहीं है कि वो तो 2 दिन में ही फ्री हो जाती है और मुझे 8 दिन क्यों लगते हैं. It's okay. It's okay. You should know how to deal with it rather than be sad about it or rather than cribbing about it, right? Another thing, ये तो सब साइंटिफिक हो गया. Another thing कि अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लॉट्स या इस तरह का फील हो रहा है, then also you should consult your doctor. Mild pain, mild cramping is natural. एक हार्मोन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन करके, वो रिलीज होता है, उसी से पीरियड्स होते हैं हमें. तो जब वो हार्मोन रिलीज होता है थोड़ा थोड़ा पेन होता है. That is okay. ज़्यादा हो रहा है तो भी आप एक बार कंसिडर कर सकते हो डॉक्टर से मिलने के लिए, ठीक है? ठीक है. अब वी टॉक अबाउट, अच्छा आई हैव मेड फ्यू स्लाइड्स.
जिस जिसके बारे में बात करूंगी मैं एक बार पास ऑन कर दूंगी, ठीक है? आप देख सकते हो साथ साथ। आपको पता है पीरियड का एक डे भी होता है, मेंस्ट्रुएशन डे। वो कब मनाते हैं पता है आपको? बताओ, किसी को पता है? हाँ हाँ, राइट, क्लास फॉर हर। ज्योति सेड वेरी राइटली 28 मई। अब बताओ 28 मई को ही क्यों होता है? 8 मार्च को क्यों नहीं हो जाता? दिसंबर में क्यों नहीं हो जाता? नवंबर में क्यों नहीं हो? Anybody has any idea? Any one of you? Why 28 May is celebrated as menstrual hygiene day? बताओ, ये पास करते जाना बेटा, पीछे पीछे देखो। बताओ क्यों करते हैं सेलिब्रेट, किसको पता है? Anybody? देखो, जो एवरेज साइकिल होती है ना, एवरेज साइकिल इज फॉर 28 डेज। ज्यादातर जो फीमेल्स होती है 28 डेज बाद उन्हें नेक्स्ट पीरियड होते हैं। ऑल्दो 28 to 35 डेज इज नॉर्मल। अगर 35 डेज के बाद भी हो रहा है तो नॉर्मल है, लेकिन 28 डेज इज द यूजुअल टाइम। तो इसके डेट क्या हो गई? 28। ज्यादातर फीमेल्स को ये 5 डेज के लिए होता है। तो मंथ कौन सा हो गया? 5। So that's how you can remember 28 मई। ठीक है, अब याद रहेगा सबको? अब तो सबको याद रह जाएगा, है ना? ठीक है, तो नाउ वी टॉक अबाउट, हम धीरे धीरे एक एक करके बात करेंगे। हम उसके अंदर ही एक स्लाइड होगा आई थिंक जनरल हाइजीन का, उसको टर्न करो, है ना? हाँ, उस नहीं, आप अपने पास ऑन करो, मुझे तो बेटा आप नींद में भी बुलाओगे तो मैं बोलूँगी। ठीक है, अब हम जनरल हाइजीन की बात करेंगे। जनरल हाइजीन में वेरी बेसिक, यू हैव टू टेक बाथ एवरी डे। पीरियड्स है तो ऐसे नहीं सोचना है नहाना नहीं है, मुझे सिर नहीं धोना है। एंड वन थिंग मोर, व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू, देयर कैन बी सम कल्चरल डिफरेंसेस। कई कम्युनिटीज में, कई घरों में बहुत सारी चीज़ों को लेके अभी भी सुपरस्टिशंस है, बिलीफ्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। काफ़ी चीज़ें जो मैं अब बोल रही हूँ शायद मेरे घर में भी कई जन एक्सेप्ट नहीं करते, मेरी भी मदर इन लॉ है, वो शायद एक्सेप्ट नहीं करती है। तो आवर आइडिया इज नॉट टू फाइट, नॉट टू क्रिएट डिफरेंसेस। घर पे लड़ाइयाँ नहीं करनी है जाकर, ठीक है? ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितना फॉलो कर सकते हो कर लो। कई बार 3-4 दिन अगर किसी को खुश करने के लिए उनके तरीके से भी रहना पड़ रहा है तो इट्स ओके। आई एम नॉट हियर टू फीड योर माइंड कि घर जाके लड़ो, ऐसा नहीं करेगा कोई भी, ठीक है? क्योंकि अगर किसी की मम्मा के लिए मत दो, अगर अपना हेड वॉश नहीं करो 4 डेज तो मत करो, इट्स ओके। Your mama always says good for you, na? So it's okay. If she can understand your point, that is good enough. नहीं समझ पा रही है तो it's okay. 4 दिन नहीं धोएंगे तो क्या हो जाएगा? But there is no scientific logic behind that. You should take bath every day. Head wash is your personal choice. You should change undergarments every day, and if your undergarments get stained, you should change them immediately. So always and always carry a स्पेयर अंडरगारमेंट। वो मैं भी आपको सारा बताऊंगी, पीरियड बॉक्स कैसे हम प्रिपेयर करेंगे क्या, ठीक है? अनदर थिंग, वॉश योर अंडरगारमेंट्स विद कोल्ड वाटर फर्स्ट एंड देन हॉट वाटर। जब भी पीरियड स्टेन्स होते हैं ना, बहुत लोग सीधा गर्म पानी में डाल देते हैं अपने अंडरगारमेंट्स को, उनको लगता है ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। उससे ना वो ब्लड और ज़्यादा अंदर ही रह जाता है। पहले कोल्ड वाटर से वॉश करो, देन हॉट वाटर, एंड ऑलवेज ड्राई योर अंडरगारमेंट्स अंडर सन। आपको पता है सन में बहुत पावर होती है। अच्छा, अभी जब कोविड टाइम था आपने देखा था ना, सब बोलते थे बाहर धूप में अगर कोरियर आए पड़ा रहने दो 2 दिन, फिर टच करो, अभी बाहर धूप में रख दो। ऐसे क्यों बोलते हैं? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द लॉजिक? अगर आप ऐसे चुप रहोगे ना तो मैं चली जाऊंगी, मैं सच्ची बता रही हूँ। आई डोंट लाइक बोरिंग ऑडियंस। आई रियली इट्स ओके, यू कैन, इट कैन बी एज सिली। Nobody will laugh, nobody will judge you. That is my promise. ये मेरा प्रॉमिस है। जो बच्चा उठ के बोलेगा उसकी क्लैपिंग तो होनी ही है, चाहे वो गलत बोले चाहे वो सही बोले। बोलो, वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट सच गर्ल्स। बोलो बोलो। पता है मैं छोटी थी ना तो मुझे ना स्टेज परफॉर्मेंस का बहुत शौक था, और जर्म्स रिमूव करने तो इसलिए क्लैप करो। गुड काम, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बोला। काजल ने बोला जर्म्स किल करने के लिए, क्योंकि जो धूप होती है उसमें यूवी रेज होती है, और आपने सुना होगा यूवी लैम्प, यूवी डिसइंफेक्टेंट भी आते हैं, क्योंकि यूवी रेज में इतनी पावर होती है कि वो जर्म्स को किल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कोविड वायरस ऑल्सो। इतना पावरफुल होती है यूवी रेज, राइट?
What I was telling you was, when I was small, तो मेरी जैसे स्टेज परफॉर्मेंस भी होती थी ना, तो जैसे लाइन में खड़ा करते थे ना, तो मैं रोती थी मुझे सबसे पहले जाना है. So you should be very spontaneous. कहीं कोई कुछ भी बोल, मतलब why to limit yourself? Spread your wings and fly. किसी का ये नहीं सोचना है वो क्या सोचेंगे, मैंने खड़े होके बोला तो वो क्या सोचेंगी, ये क्या सोचेगा. नो, गिव योर ओपिनियन. ठीक है, तो क्लैप फॉर काजल वंस अगेन. और अब की बात, जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूँ ना तो सारे हाथ खड़े होने चाहिए, मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मैं किसको बोलूँ. ठीक है, चल अभी सब, और कोई अपने अंडरगारमेंट्स ऐसे अंदर छुपा के अपने रूम में नहीं ट्राई करेगा. अगेन कंसेंट विद योर मम्मा, कंसेंट विद योर मदर इन लॉ, उसके बाद. ठीक है, लेकिन इट इज गुड टू ड्राई योर अंडरगारमेंट्स आउटसाइड अंडर द सन रेज फॉर द रीजन आई टोल्ड यू. ठीक है, another very important thing is keep your genitals are your private parts. In scientific language we call them genitals, right? Keep your genitals always dry. मतलब गीलापन और ऐसे नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो आप अगर चाहो, किसी को ऐसा लगता है कि डिस्चार्ज आ रहा है, आप वॉश करके आए, तो आप टिश्यूज भी यूज कर सकते हो, बट यू शुड कीप देम ड्राई. राइट, अनदर थिंग विच इज लिटिल ऑफ टॉपिक, लेकिन कोई गाइड नहीं करता ये चीज़ें, इसलिए मैं सब कुछ बताऊंगी आपको, एंड आई डोंट फील हेजिटेंट अबाउट इट. आपके जो प्यूबिक हेयर होते हैं ना, अभी नहीं, अभी आप बहुत छोटे हो, थोड़ा टाइम रुक के फिर आपके जो पीरियड्स होते हैं, तो गायनेक भी यही सजेस्ट करती है और डॉक्टर्स भी सजेस्ट यू शुड सिजर ट्रिम देम. सिजर से ट्रिम करना चाहिए टू मेंटेन हाइजीन. नो हेयर रिमूविंग क्रीम्स, नो वैक्सिंग, नो अदर थिंग्स, लेकिन सिजर से ट्रिम आप कर सकते हैं. दिस इज अनदर थिंग. ठीक है, इट हेल्प्स यू मेंटेन योर जनरल हाइजीन. नाउ डोंट एवर यूज सोप ऑन योर प्राइवेट पार्ट्स. डोंट यूज इट. जो सोप होते हैं ना, उनके पीएच बहुत हाई होता है, और जब अगर हम वो सोप को यूज करते हैं तो वो हमारा जो नेचुरल फ्लोरा, नेचुरल कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो जरूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए. आप दही खाते हो ना, दही में भी लैक्टोबैसिलस, अब याकुल्ट आजकल इतनी आ जाती है कि उसमें बहुत सारा फ्लोरा है, ऐसे हमारी बॉडी में भी होता है. तो अगर हम सोप या कुछ यूज करते हैं ना, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है. जब तक कि आपको डॉक्टर ने कोई वॉश नहीं सजेस्ट करा है ना, कोई स्पेसिफिक कंडीशन के लिए कि कोई इन्फेक्शन है, आपको सोप यूज नहीं करना है. राइट, दिस इज ऑल अबाउट जनरल हाइजीन. नाउ कमिंग ऑन टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन. मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्पेसिफिकली, पास इट ऑन, पास कर रहे हो ना आप लोग सबको, करो और पास करो. मेंस्ट्रुअल हाइजीन से जो आप क्या समझते हो, मतलब जो 4-5 डेज, 10 डेज, 8 डेज, व्हाटएवर जो भी पीरियड्स के डेज होते हैं, उसमें कैसे हाइजीन मेंटेन करना है स्पेसिफिकली. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ट्राई टू यूज डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन इफ पॉसिबल. कुछ घरों में अभी भी क्लॉथ यूज करते हैं. देखो, वंस इन अ व्हाइल आई एम श्योर हम लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं ना, सबने कभी ना कभी एक बार तो क्लॉथ यूज करा ही है. तो अगर आप कर भी रहे हो तो देयर इज नथिंग टू फील अशेम्ड ऑफ. राइट, मैंने भी यूज किया हुआ है. अब एकदम से खत्म हो गए, क्या करोगे, है ना? या आप कहीं पे गए हो, नहीं है आपके पास कुछ भी, ठीक है, आपने हैंग किया, आपने यूज कर लिया क्लॉथ, ठीक है, लेकिन गुड थिंग इज टू यूज ऑलवेज सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजेबल, बिकॉज इट मेक्स यू रिलेटिवली लेस प्रोन टू इन्फेक्शंस. आपको ज़रूरत तो ये होना यही चाहिए, लेकिन फिर भी अगर घर पे मम्मा या नहीं एग्री करते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट डोंट रीयूज द क्लॉथ. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्लॉथ को वॉश करके फिर से यूज करते हैं. वो मत करो. कम से कम अगर क्लॉथ यूज कर रहे हो पहले तो यूज मत करो. अगर फिर भी यूज करना पड़ रहा है या यूज कर रहे हो तो उससे भी ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, उसको यूज कर लो. But nowadays, what we are going through, or we are listening in the social media, that these sanitary napkins are becoming environmental hazard. They are becoming. There are lot of brands. जो ट्रेडिशनल ब्रांड्स आ रही थी ना, स्पेशली विस्पर आ रहा था. स्टे फ्री इज स्टिल अ कॉटन बेस, उसमें दोनों वेरिएंट्स आते हैं. विस्पर जो है वो एक्सक्लूसिवली उसमें नेट और प्लास्टिक्स आ जाए, तो इट इज डेफिनेटली एन एनवायरमेंटल हैजार्ड for the ladies of our age, for people grown up, like who are married. I would suggest switch to menstrual cup. I will guide you about it. I use. It's a blessing.
अगर आप एक बार यूज कर लोगे ना, आप दोबारा पैड यूज ही नहीं करना है। But not for these little girls. It will be very difficult for them to insert and take it out, and they'll get scared also. For us, so I'll tell you, अगर हम environmental उसके concern है I read about this also. हाँ, तो पैड को तो छोड़ ही दो। इनके लिए अगर ये पैड आप कर रहे हैं तो मैं इनको दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पे एक ट्रे बना के रख दूंगी, तो यू कैन आप यहाँ पीछे रख देंगे। ये 2-2, 3-3 के ग्रुप्स में जाकर दे कैन सी ऑल द प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आई हैव ऑल, ठीक है। अगर क्लॉथ यूज कर रहे हो तो उसको रीयूज मत करना। रीयूज ये नहीं करना कि धो के फिर से यूज कर रहे हो, अवॉइड इट, डोंट यूज इट, डोंट डू दैट। Unfortunately, in India, 63 million girls they don't have access to basic things. मतलब जैसे टॉयलेट हो गया या एक पैड हो गया, ऐसा होता है। तो बेटा देखो, try and cut down your other expenses to meet the basic expenses. अब मम्मा से बाकी चीज़ों की जिद करोगे, मतलब फजूल खर्ची करोगे, तो फिर आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं होंगी। रिसोर्सेज तो उतने ही है ना, ठीक है। तो ट्राई कि आप बाकी जगह सेव करके सही जगह स्पेंड करें, ठीक है। अनदर थिंग, जब आप पैड यूज़ करोगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, स्पेशली जब 4th-5th डे होता है, क्योंकि तब से स्पॉटिंग होती है, तो उनको लगता है जैसे सुबह का पैड लगाया और रात तक भी वो सोक कर सकता है, अभी उसमें पूरा कुछ होता नहीं है ज़्यादा, तो वो 12 आवर्स एक ही पैड लगा के रखते हैं। ऐसा हो जाता है ना कभी कभी, ऐसा नहीं करना है। प्लेज इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, यू विल नेवर एवर डू दैट। 4 या 5 आवर्स से ज़्यादा एक ही पैड को यूज़ नहीं करेगा कोई भी बच्चा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको लगता है लास्ट के 4th-5th डे आपका नहीं यूज़ होता है, जस्ट एक आध ड्रॉप, बहुत स्पॉटिंग होती है, आप इससे बेटर तो क्लॉथ यूज़ कर लो। लेकिन ऐसे नहीं कोई करेगा कि एक पैड लगाया और 10-12 घंटे लगा के घूम रहे हो, ऐसे कोई नहीं करेगा, ठीक है। अनदर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये बच्चे बताएंगे, पैड को डिस्पोज कैसे करते हो। रेज योर हैंड, अभी भी किसी का हाथ नहीं उठा। कैसे पैड को कैसे थ्रो करते हो, कैसे डिस्पोज करते हो। अभी भी आप थ्रो नहीं करते, कोई और आते करते, तो फिर हाथ क्यों खड़ा करते। जल्दी रेज करो हैंड, आई शुड सी एवरीबॉडी। ये तो इतना बेसिक क्वेश्चन है यार, इसमें भी तुम्हें शर्म आ रही है। अब तुम्हें बताओगे, खड़े हो जाओ। जो हाथ नहीं खड़ा करेगा तो वो पहले पकड़े जाएंगे, चलो खड़े हो। हाँ, वो नीचे में पूछूंगी, क्योंकि पैड तो यूज करते ही होगे, फेंकते भी होगे, मम्मा तो नहीं फेंकने आती, तो फिर बताने में क्या प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे सब फीमेल्स है, वैसे तो मेल्स भी हो तो बिग डील। पैडमैन देखिए, अब अक्षय कुमार हाथ में पैड लेके पूरी दुनिया को बता सकता है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये बताओ। चलो बताओ। अच्छा बिना माइक के बताते यार, ऐसे ही बताए, फोल्ड करके फिर ऐसे ही, फिर पेपर में डाल के, वेरी। अब नाउ क्लैप फॉर आयशा। आयशा ने बहुत लोगों की क्लैपिंग की। शी सेड राइट, न्यूज़पेपर में रैप करके उसको तो ही डस्टबिन में डालना है। कोई बच्चा उसे फ्लश नहीं करेगा, कोई बच्चा वॉशरूम में नहीं छोड़ेगा। आप कभी ऐसे वॉशरूम में जाना चाहोगे जहाँ पे एक पैड पड़ा हो, वो भी किसी का यूज, तो आप कैसे छोड़ के कैसे आ सकते हो किसी वॉशरूम में। आपने देखा है ना, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। कोई यहाँ का बच्चा अभी जो ये वर्कशॉप सुन रहा है वो ऐसे कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, नेवर। प्लेज इट, यू शुड नेवर डू इट। डस्टबिन हर जगह होता है, ऐसा कोई वॉशरूम नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो यू शुड ऑलवेज कैरी न्यूज़पेपर। अच्छा, और स्कूल्स में भी आई वुड रिक्वेस्ट टीचर्स, एक न्यूज़पेपर का बंडल बना के ना, न्यूज़पेपर को कट करके A4 साइज में कट करके ना शीट्स को न्यूज़पेपर की, बच्चे ही करेंगे, इनके मॉनिटर्स इनकी ड्यूटीज असाइन कर दो आप। और वॉशरूम के पीछे ना जो एक मोटे वाला थ्रेड आता है ना, उससे टाई करके आप वॉशरूम के पीछे एक कुछ स्टिक ऑन या कुछ लगा के वहाँ पे अगर वो होगा ना तो बच्चे उसमें डाल के ही डिस्पोज करेंगे। इवन आई हैव डन दिस। पता है, अभी मैं पीरियड बॉक्स बताऊंगी कैसे बनाते हैं। उसको डिस्पोज करने के लिए हमेशा न्यूज़पेपर में ही रैप करके रखना है, उसको फेंकना है और न्यूज़पेपर हैंडी उस टाइम ही घूमना है। वैसे तो ज़्यादातर पैड्स के साथ ही अब क्लॉथ पाउच आता है, उसमें से हम निकालते हैं और दूसरा अगर आप ऐसा यूज़ नहीं कर रहे हो, कहीं से नहीं भी आता, तो अपना रेडी रखो ना न्यूज़पेपर। सुबह सुबह नहीं भागना है न्यूज़पेपर लेने।
न्यूज़पेपर रेडी होना चाहिए, उसको कट करके ऑलरेडी। अगर आप थिंग्स को ऑर्गेनाइज रखोगे ना, योर लाइफ वुड बी वेरी इजी। नाउ वी कम टू द मोस्ट, आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। हम एक पीरियड बॉक्स, हर बच्चा भी घर जाके ना आज एक पीरियड किट या एक पीरियड बॉक्स बनाएगा। उसमें क्या क्या डालेगा वो मैं बताती हूँ। एक तो उसमें हम 2 पैड्स डाल के रखेंगे, ठीक है, 2 पैड्स लेंगे। थैंकफुली लकीली पैड्स की एक्सपायरी डेट इतनी जल्दी नहीं होती है, तो उसमें आप रख सकते हो आराम से, ठीक है। तो 2 पैड्स रखोगे, एक वॉश पैड भी रखोगे, ठीक है। 4-5 न्यूज़पेपर जो मैंने बताया कट करके स्टेपल करके उसके अंदर रखोगे। हर बच्चे ये स्कूल लेके आएगा रोज एक, इसमें कोई वेट नहीं है, इतना सा बन जाता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इतनी सी डायरीज आती है ना, छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी सी पेन आता है, वो भी रखोगे। कोई बच्चा ऐसे याद नहीं करेगा मेरी डेट उस दिन बारिश हो रही थी, उस दिन इसका बर्थडे था, उस दिन मैं वहां गई थी, उस दिन मेरे घर में ये बना था, ऐसे कोई याद नहीं करेगा। अपनी जब भी आप डाउन होगे उसके अंदर एक डायरी में लिखोगे और उसके अंदर रखोगे, ठीक है। यू विल फील वेरी गुड अबाउट इट। पता है बच्चे इतने क्यूट क्यूट बॉक्सेस बनाते हैं, उसको डेकोरेट करो, फील गुड अबाउट इट। पेन इरिटेशन नो, उसको सेलिब्रेट करो, उसके साथ रहना सीखो, जितनी जल्दी सीख जाओगे उतना अच्छा हो जाएगा। ऐसा बॉक्स बनाओगे ना घर जाके, बॉक्स बना सकते हो, क्लॉथ पाउच बना सकते हो, जिप वाला किट बना सकते हो। पेंसिल बॉक्स आते हैं ना आपके, क्यूट क्यूट पाउच आते हैं, एक ऐसा पाउच बना सकते हो। कोई ऐसे नहीं जाएगा वॉशरूम जैसे अंडरवर्ल्ड से कुछ स्मगलिंग करके छुपा के, कोई नहीं जाएगा। अपना किट उठाओ, मैम से बोलो और आराम से जाओ। छुपा छुपा के एक पैड यहाँ रख वहाँ रख, ऐसे कोई नहीं जाएगा, ठीक है। जो आपके पास बहुत प्यारा सा किट होगा तो आप उसको प्राउडली फ्लॉन्ट करके जा सकते हो, किसी को पता ही नहीं उसमें क्या है, आराम से जाओ। और अगर आपका किट रेडी होगा तो आपको कहीं जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो बस आपने वो अपने पास रखा, आई विल बी कॉन्फिडेंट। अगर आप चाहो तो उसमें एक आध मेडिसिन भी रख सकते हो, अगर किसी बच्चे को ज़्यादा पेन होता है तो। अगर आप चाहो तो उसके अंदर क्रैम्प रिलीफ किट रोल ऑन भी आते हैं मार्केट में आजकल, जैसे बाम होती है ना ऐसे रोल ऑन भी आते हैं स्टमक पे लगाने के लिए। जो जो आपको कंफर्टिंग लगता है ना, और आपको पता है आप चॉकलेट भी रख सकते हो, इफ नॉट इन दैट पाउच, इन अ सेपरेट पाउच यू कैन कीप chocolate, you can keep handful of nuts to give you energy, you can stay hydrated। तो ये सब चीज़ें अपने आप को रेडी रखा करो मंथ के लिए, ठीक है, करोगे ना। फिर जब आपका वो यूज हो जाए नेक्स्ट मंथ के लिए उसे फिर से रेडी करके रख दो। इट इज़ वेरी सिंपल। फिर पेन या फिर इरिटेशन क्यों होनी है, इरिटेशन बोल रहे थे ना, इरिटेशन नहीं होगी आप, ठीक है। अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज सीक हेल्प। सीक हेल्प, जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत है, अगर आपके पास पैड या कुछ नहीं है, सब फीमेल्स को होता है, बैठ के सफ़र नहीं करना है, बैठ के परेशान नहीं होना है, हेल्प लेनी है। और अब का टाइम बदल गया है, अब आप हेल्प अपने मतलब थिंग्स आर चेंज। आई थिंक दिस इज फॉर द टीचर्स हियर, नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, सो एजुकेट योर सन टू बी अ गुड सन, टू बी अ गुड ब्रदर, so that he can be good husband in future। तो आपको थोड़ा ओपन होने की ज़रूरत है अपने घर में। I have a joint family, I have made this box for my girl because when I am away at clinic, अगर उसे पीछे से ज़रूरत पड़ेगी तो I know that things should be ready, लेकिन she should wait for me to help her। आप अपने पापा से भी कभी मम्मा नहीं है तो हेल्प ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली एटमोसफेयर। आई डोंट नो यू पर्सनली, मैं नहीं कह सकती, मम्मा से बात करो। योर मम्मा विल बी ओपन टू योर डैड एंड टू योर ब्रदर, सो यू विल बी ओपन टू दैट, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस, ये बड़ों को चेंज लाने की ज़रूरत है। इट इज़ नॉट समथिंग, एक माइलस्टोन है, इसमें ये नहीं है कि अगर हमें प्रॉब्लम है तो हमें अपनी मदर से ही पूछना पड़ेगा, सिस्टर से ही। अगर नहीं है घर में कोई तो हम अपने ब्रदर को भी कह सकते हो एक चाय बना के देने के लिए, इट्स ओके। सो दिस इज द चेंज वी नीड, ठीक है। उसके लिए भी आप छोटे हो, चेंज तो नहीं ला पाओगे, लेकिन एटलीस्ट बी ओपन अबाउट इट। अगर आपको हेल्प चाहिए, मैम से हेल्प लो, घर में दीदी से हेल्प लो, मम्मा से हेल्प लो, दादी जो भी आपके घर में है उनसे हेल्प लो। अकेले इस बारे में परेशान नहीं होना, ठीक है। नाउ न्यूट्रिशनल हमने सब कवर कर लिया। न्यूट्रिशनल एंड
इमोशनल इज लेफ्ट, आई जस्ट कवर इट क्विकली इन 10 मिनट्स। अब आप लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, मुझे दिख रहा है। अभी हम और ज़्यादा बात नहीं करेंगे। न्यूट्रिशनल में मुझे बताओ, अब दोबारा से हैंड रेस करने की बारी है, जल्दी से। जो नहीं करेगा उसको ही मैं पकड़ूंगा, ठीक है? अब ये बताओ कि कौन से न्यूट्रिएंट से ब्लड बनता है, मतलब विटामिन, कैल्शियम, आयरन, ब्लड किससे बनता है? जल्दी 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 जल्दी, बस 2 बच्चों को पता है। किसको पकड़ूं मैं? अच्छा आप बताओ, जिसने हाथ खड़ा करा है वही बताओ। तो ये है आयरन। क्या करा? बच्चे कितने? बाहर। तो जैसे भी कुछ बाहर ने बताया है, आयरन इज असेंशियल फॉर मेकिंग ब्लड। तो अगर आप बहुत लॉजिकल है ना, 4-5 दिन अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आपको कौन सा फूड ज़्यादा खाना है? सिर्फ 4-5 दिन नहीं, वैसे भी ज़्यादा खाना है। रिच इन आयरन, आयरन रिच। अच्छा एक बहुत मैं हिंट देती हूँ, ठीक है? फिर आप सब हाथ खड़ा करेंगे, अब टीचर्स भी करेंगे, खड़ा करेंगे, ठीक है? अच्छा एक ऐसा न्यूट्रिएंट, ऐसा फूड आइटम बताओ जो सब घरों में यूजुअली होता है, मीठा होता है, ठीक है? सब रेलिश करते हैं और वो बहुत रिच होता है आयरन में, रिचेस्ट इन आयरन, रिचेस्ट इन आयरन। बताओ बच्चे। चलो मैम से पूछ लेते हैं। हाँ कैरेट स्पिनच तो है, मीठा मीठा क्लैप फॉर बोथ मैम। लेकिन एक ना बहुत मीठा सा जैगरी इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन एंड इट इज मोस्ट कॉमनली मोस्ट रेडिली अवेलेबल इन ऑल इंडियन हाउस होल्ड। मतलब गुड़ तो सबके घर में होता ही है, स्पेशली विंटर्स में तो होता ही है। तो आज से ना सब बच्चे प्रॉमिस करेंगे एटलीस्ट इन विंटर इफ नॉट इन समर। गर्म होता है तो कुछ लोग गर्मी में देना या खाना या घर में रखना पसंद नहीं करते हैं। साइंटिफिकली कोई लॉजिक नहीं है, खा सकते हो आप गर्मी में, थोड़ा खा लो, खा सकते हो। हर मील के बाद विंटर्स में गुड़ जरूर खाओगे आप सब, पक्का। दिन में 2 बार, छोटा छोटा। बाकी मिठाइयाँ खाने से ना गुड़ खा लो, भला हो जाएगा तुम्हारा। चॉकलेट वगैरह से गुड़ खा लो। जो बच्चा रोज गुड़ खा लेगा ना थोड़ा सा, उसे आयरन की कभी डेफिशिएंसी नहीं होती। और जैसे मैम ने बताया स्पिनच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दे आर वेरी वेरी रिच इन आयरन। सब आयरन रिच फूड खाएंगे। जो बच्चे अपना न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं ना, उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती, उन्हें पेट में दर्द नहीं होता, कम होता। जो एक्टिव रहते हैं उन्हें नहीं होता, ठीक है? गुड़ खाओगे सब? किसी को पसंद नहीं है? मुझे अच्छा नहीं लगता था पहले, पर मैं अब खाती हूँ। अगर ऐसे पसंद नहीं है ना तो उसमें आप तिल डाल के या गज्जक, पीनट्स, वो पीनट वो होती है ना, चिक्की होती है, गज्जक होता है, वो खा सकते हो, पर खाना है, ठीक है? अच्छा और क्या ध्यान रखना है खाने पीने में? पानी बहुत ज़्यादा पीना है। आपको पता है मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, उनको मैं कभी भी बोलती थी ना मेरे सर दर्द हो रहा है, आज मेरे पैर में दर्द, तो सबसे पहले वो पूछते पानी कितना पिया है तुमने? तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि क्या है, पानी से क्या होता है? पर सच्ची में पानी से बहुत कुछ होता है। जिस दिन आप पानी कम पीते हो ना, उस दिन आधी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। देखो अभी भी मेरे पास वाटर बॉटल है, सब बच्चों को पानी पीना है, एटलीस्ट 2-3 लीटर्स वाटर रोज पीना है, सिर्फ 4-5 डेज नहीं, रोज पीना है, ठीक है? न्यूट्रिशन में बैलेंस डाइट, रिच इन आयरन, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिच इन आयरन, एंड अनदर इज प्रोटीन इज गुड फॉर ग्रोथ, प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा पानी ज़्यादा पीना है। पानी में सिर्फ पानी फ्लूइड्स आप बढ़ाओ, पानी तो पीना ही है, जैसे नारियल पानी पी सकते हो, विंटर्स में सूप पी सकते हो, गर्मी में शिकंजी, लस्सी भी सकते। अगेन एज योर मॉम सेज, लड़ाइयाँ नहीं करनी है। ये मत कहना स्कूल में एक मैम आई थी, वो सिखा के गई है हमें शिकंजी पिलाओ, ऐसे कोई बच्चा नहीं करेगा। शिकंजी हम बेसिकली लस्सी के लिए मना करते हैं, पेरेंट्स के लिए। हाँ लेकिन दूध और लस्सी के लिए ये सुपरस्टिशन है, ये भी सुपरस्टिशन हाँ, है कि वाइट चीज नहीं पीनी है। हाँ सुपरस्टिशन बहुत है। अचार नहीं हाथ लगा, देखो वो ना एक्चुअली लॉजिक मैं बताती हूँ। लॉजिक अचार के पीछे क्या था,
जब पीरियड्स होते हैं ना तो ब्लोटिंग और गैस्ट्राइटिस ज़्यादा होता है, गैस ज़्यादा बनती है, कईयों को खाना डाइजेस्ट नहीं होता, उल्टी जैसा लगता है। तो इसलिए बोलते थे कि मिर्च मसाले कम खाओ। अब उससे हो गया अचार मत खाओ। अब फिर किसी ने कह दिया होगा अचार को छूना भी मत। अब वो क्या बन गया, अचार को तो छूओगे तो अचार ही खराब हो जाएगा। अब जैसे किसी की मम्मा ने अब जैसे कोई शरारती होगा मेरे जैसा या आपके जैसा, उसकी मम्मा ने उसे डराया होगा कि अगर अचार को छुआ ना तो पूरा अचार खराब हो जाएगा। अब वो क्या बन गया, अचार ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए उसको बिलीव नहीं करना, पर येस वी कैन अवॉइड। स्पाइसी फूड थोड़ा कम खाएं तो बेटर है। और दूध और लस्सी भी कईयों को, क्योंकि उस टाइम में नौजिया बहुत होता है कईयों को, तो इसलिए दूध से बनी चीज़ें शायद इसलिए मना करी जाती होंगी, पर अब लोगों ने उसको एक वो बना दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट फिर भी मैं कहूँगी सबसे इम्पोर्टेंट ना पीस होती है, मेंटल पीस। घर में लड़ाइयाँ करके कोई काम नहीं है। जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ उसमें से एक आध मैं भी फॉलो नहीं करती, क्योंकि मेरे घर में बड़े कहते हैं मत करो, तो मैं कहती अच्छा नहीं करो, क्या हो गया, 4 दिन नहीं भी करेंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। पर ट्राई एंड फॉलो, ठीक है। ये न्यूट्रिशनल हो गया, ये सब हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ लास्ट रह गया, इमोशनल एंड फिजिकल। कौन सा बच्चा स्कूल से छुट्टी करता है जब पीरियड्स होते हैं? कोई बच्चे करते अच्छा डरो नहीं, डांट नहीं, सच्ची में करते हो, दर्द होता है आपको, क्यों करते हो? रेस्ट करने का मन करता है, किस लिए करते हो? बता दो वहीं से पहले का बेटा बोलो। वैसे रेस्ट करने का मन। अच्छा, आपको लगता है ये जो स्पोर्ट्स विमेन है जैसे मैरी कॉम है, सानिया मिर्जा है, इनके टूर्नामेंट होते होंगे और इनके सर इनसे पूछते होंगे, ये बोलती होंगी कि नहीं आप ना टूर्नामेंट वर्ल्ड में उस दिन कराना जब मेरे पीरियड्स नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से तो ऐसे ना फिर टूर्नामेंट पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि वो एक प्लेयर बोलेगी आज मेरे पीरियड्स है, दूसरी प्लेयर बोलेगी आज मुझे पीरियड्स है, ऐसा होगा ही नहीं। डू यू एवर थिंक ये जो इतनी स्पोर्ट्स वुमेन है पूरे महीना इनके कुछ ना कुछ लगा रहता है, टूर्नामेंट्स होते हैं, वर्ल्ड वाइड ये ट्रैवल करती हैं, डू दे स्टॉप? व्हाट स्टॉप्स यू? स्कूल ही तो करना है। नथिंग शुड स्टॉप यू। अब एक बार बताओ, आज का ये वर्कशॉप था, आपकी सारी मैम्स ने प्रिपेयर किया है, हम सब लोग यहाँ पर हैं, वी आर वर्किंग एज अ टीम। डू यू थिंक हम में से एक भी सारे ऐसे होंगे जिनको पीरियड्स नहीं हो रहे होंगे? नो, इट इज नॉट लाइक दैट। इट शुड नेवर स्टॉप यू। सो अब अपने लिए सारे क्लैपिंग करेंगे, सारे अपने लिए क्लैपिंग करेंगे कि हमें कुछ भी रोकेगा नहीं, स्पेशली पीरियड्स। क्लैप फॉर योरसेल्फ। इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल थिंग। उसको मैनेज कैसे करना है ना, वो सीखो, रुक मत जाओ। मैंने पहले भी बोला था ना, डोंट स्टॉप, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। कोई भी जो स्पोर्ट्स विमेन है, अब तो इतने मिनिस्टर्स क्या क्या बन, एस्ट्रोनॉट्स, अब वो रॉकेट तो ऐसे लॉन्च नहीं कराएंगे ना कि उसी दिन जाएंगे जी नासा में जब मेरे पीरियड्स नहीं होंगे। कहीं अपने घर बैठो, आपको जरूरत नहीं आने की, कल से बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे कोई बच्चा नहीं करेगा। अगर आपको प्रॉब्लम है, मन करता है, जो भी है, आप उसको डील कैसे करना है वो सोचो। दिस इज अ स्मॉल थिंग। लोगों को इतने मेडिकल कंडीशंस होते हैं, पता है, वो फिर भी क्या क्या कर जाते हैं। कोई बच्चा छुट्टी नहीं करेगा, ठीक है। आप घर पे बैठे रहोगे ना एक कमरे में और एक रूम में बैठ के सोचते रहोगे तो ज़्यादा पेन होएगा, और स्कूल आके मज़े करोगे ना, पता भी नहीं चलेगा आपको, ठीक है। नो मोर हॉलीडेज, नो मोर हॉलीडेज। यू कैन टेक हॉट पैक ले सकते हो अगर पेन है। दवाई डॉक्टर से कंसल्ट करके यू कैन कंसिडर, एंड यू शुड नो द कॉज कि क्यों ज़्यादा पेन होगा, ठीक है। दिस इज ऑल। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इज इमोशनल हेल्थ। बहुत सारे बच्चों को सेम चिड़चिड़ा फील होता है, रोने का मन करता है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो मेरा भी कई बार बिना बात के रोने का मन करता है। जैसे कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो भी रोने का मन करता है, कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो भी रोने का मन करता है कि ये तो बहुत ही अच्छा हो रहा है ऐसा हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट इट, इट इज़ नॉर्मल, इट हैपन्स विद एवरीबडी। और आपके साथ जो फीमेल है उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। मान लो आपकी फ्रेंड है, आज उसका मूड अच्छा नहीं है, वो थोड़ा चिड़चिड़ी है, आज उसको अच्छा नहीं लगता, उसको पॉइंट आउट मत करो कि तुम्हें पीरियड्स हो रहे हैं तो तुम ऐसे ही करती हो, तुम्हारा तो यही काम है। नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ ऐसे मत करो। वही एटीट्यूड औरों के लिए रखो जो आप बाकियों से अपने लिए एक्सपेक्ट करते हो। अगर आप बाकियों से चाहते हो ना, आप उस टाइम पे कोई एक गिलास पानी दे तो अच्छा लगता है ना। अगर आपकी फ्रेंड उस टाइम पे कह दे मैं आज से लिए ना चॉकलेट लाई हूँ,
अरे तू चिंता मत कर, आज मैं तेरा बैग मैं उठा लेती हूँ, मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ। आपको अच्छा लगा ना सुनने में? कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो सुन के ही बहुत अच्छा लगा। तो आप वो चीज़ अगर अपने फ्रेंड के साथ करोगे, वो भी आपके साथ करेगी। आप अपनी छोटी सिस्टर के साथ, बड़ी सिस्टर के साथ करोगे, उस दिन कहोगे आज मैं बेड बना देती हूँ, आप दीदी रेस्ट कर लो, उसको अच्छा लगेगा ना मम्मा के साथ। तो आप ऐसे करो, किसी को पिन पॉइंट मत करो, और उन दिनों में अगर कोई आपको कुछ कह देता है तो उसको इग्नोर कर दो। आप सोचो कोई बात नहीं, इसके मूड स्विंग हो रहे हो, ठीक है? That's all from my side. If anything I missed out or anything you want to ask me, you can ask me. यहाँ से जाने के बाद इस टॉपिक पे कोई डाउट, कोई फियर, कोई मन में ये क्या होता है, वो क्या होता है, अगर कुछ है तो पूछ लो। पूछना है कुछ? पक्का? चलो, ओके, थैंक यू। Professional martial art champion and entrepreneur and social worker, Mr. Rajat Bhardwaj. Give a big hand to welcome him. Good morning, everyone. And lots of blessings for you because you are here and listening to us. आज के टाइम पे सुनना भी बहुत बड़ी बात है। And happy International Women's Day to all ladies are here. I am Rajat Bhardwaj, professional martial art fighter. And मैं यहाँ पे आपको मार्शल आर्ट सिखाने नहीं आया, क्योंकि वो सिखाया नहीं जा सकता यहाँ पे। 5 मिनट में कोई आपको मार्शल आर्ट नहीं सिखा सकता। कोई ये कहे कि 1 घंटे का सेमिनार में मार्शल आर्ट का नहीं सिखाया जा सकता। ये सालों की प्रैक्टिस होती है। बट आई कैन प्रिपेयर यू फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। कैसे? आपने देखा होगा, मूवीज भी देखी होंगी, सीरियल्स में भी देखा होगा कि कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जहाँ पे आपका माइंड काम करना बंद कर देता है और आप सोचते हैं अब मैं क्या करूँ, यहाँ मैं फंस गई हूँ। कोई है जो आपको फॉलो कर रहा है, कोई है जिससे आपको अटैक होने का खतरा है। न्यूज़ आपने देखा होगा, किसी पे एसिड अटैक हो जाता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे पर एसिड का हल्का लगा और बहुत रोया मैं। उस दिन मुझे पता चला कि जिस लड़की के फेस पे एसिड गिरता होगा, मेरे पैर पे गिरा था और मैं बहुत रोया था। लेकिन उस लड़की को देख के मैं अंदर से भावुक हो जाता हूँ, जिसके फेस पे गिरता होगा उसके साथ कैसा होता होगा। दैट्स व्हाई आपको प्रिपेयर होना है। यहाँ से ये काम करता है। कोई पंच, कोई किक इमरजेंसी में काम नहीं आता, आपका दिमाग काम आता है। तो मार्शल आर्ट का पहला नियम होता है भागना। ये मत सोचना भाग जाओगे तो बेइज्जती हो जाएगी, उसने देख लिया तो लड़ाई में भाग गए थे, नहीं। मार्शल आर्ट का पहला नियम है भागना। आपको वहां से निकल के भागना आना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी आपकी है। अगर चोट लगी आपको लगेगी, जो आपको ताने मारे उसको चोट नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर आपको बिल्कुल ही रोक लिया वहां पे, लड़ने का पॉइंट आ गया तो डिफेंड कर। सबको पता है आपकी बॉडी कैसी है, सबको पता है। 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें, 1 नाक है, 206 हड्डियां हैं। 206 हड्डियां हैं, यानी आपस में कहीं ना कहीं जुड़ती हैं, और जहां जुड़ती हैं वो एक मोशन में टर्न होती हैं। अगर मैं उसके ऑपोजिट मोशन में घुमा दूं तो क्या होगा? आपका हाथ है, ये 90 डिग्री पे घूमता है, अगर इसको दूसरी तरफ 90 डिग्री घुमा दिया तो क्या हो जाएगा? इसके लिए मार्शल आर्ट सीखना किसी को आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के वाइटल पार्ट्स क्या हैं। तो जो आपकी बॉडी के वाइटल पार्ट्स हैं वही सामने वाले की बॉडी के वाइटल पार्ट्स होंगे। तो आपका क्या काम करना चाहिए? दिमाग। जब भी आपके पास कोई ऐसे आता है, आपको उसके वाइटल पार्ट्स पे देखना है। आंखें, ट्रैकिया, लास्ट रिब केज, ठीक है, ग्रोन पार्ट्स, वहां पे आप अटैक करके अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। आपने मार्शल आर्ट सीखा, दैट्स गुड, आप सीखिए। मैं चाहता हूं आप लोग मार्शल आर्ट सीखें ताकि आप अगले आने वाले बुरे टाइम के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। बट अभी के लिए मैं आपको यही बताना चाहूँगा, अपने माइंड को प्रिपेयर करना, कभी मत डरना, ठीक है। आप दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। एक फीमेल एक मेल के कंपैरिजन में 40 गुना ज़्यादा डर बर्दाश्त कर सकती है। तो आप फाइट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको डर लगता है। जिस दिन ये डर निकाल देंगे, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। जब भी आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपको खतरा हो, तो आपको उसके वाइटल ऑर्गन्स पे अटैक करना आना चाहिए। अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो में कोई आपको पीछा करे, कहीं आपको खतरा हो, तो अपने आप को डिफेंड करना आना चाहिए। थैंक यू। अब मैं इस बार
इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा केतकी मैम को, प्लीज मैम। शी इज अ वेरी यंग लेडी। आप इनसे क्या सीख सकते हैं? कम उम्र में इन्होंने पूरा बिजनेस अपना मैनेज किया है। आज सोसाइटी में इतने बच्चों को ट्रेन कर चुकी हैं, गुड टच और बैड टच पे, छोटे छोटे बच्चों से लेके आप जैसे बच्चों को। ठीक है, तो आज मैम आपके लिए कुछ प्रेजेंट करना चाहती हैं, तो प्लीज गिव हर अ बिग हैंड। Good morning, everyone. Yeah, first of all, happy Women's Day to all. आप सब देख रहे हैं आज के सिनेरियो में, आप न्यूज़ चैनल्स ओपन करते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ गर्ल्स को लेके, वुमेन्स को लेके बहुत सी ऐसी चीज़ें आपने नोट की होंगी। न्यूज़पेपर है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई चीज़ें हो रही हैं, ज़्यादातर वुमेन्स और गर्ल्स के साथ ही हो रही है, और लिटिल बिट आजकल बॉयज़ के साथ भी शुरू हो रही है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, उसी के देखते हुए मैं आपके साथ कुछ सेफ्टी रूल्स शेयर करूंगी। नॉट अ गुड टच बैड टच, जस्ट अ सेफ्टी रूल्स जो आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। आप लोग रात को कहीं बाहर जाते हो, आप लोगों को नहीं पता कि कौन आपका पीछा कर रहा है। कोई भी अजनबी है आएगा पीछे से, आपको थोड़ा सा लगेगा हाँ कोई तो है पीछे, कोई आ रहा है, आप क्या करोगे? आपको नहीं पता। किसी को पता है कि कौन क्या कर सकता है उस बीच? नहीं पता। सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है, आपके आसपास कोई घर है, कोई शॉप है, या कोई भी एटीएम है, कोई फैमिली खड़ी है, तो आपको उनके पास जाना है, अपनी पूरी कंडीशन बताओ कि सर या मैम कोई भी है वहाँ, ऐसे ऐसे कोई मेरे पीछे आ रहा है, तो मेरे को थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है। भाई अंदर आपके मन में डर आता है ना, आप कहीं जाते हो, कोई भी आपके पीछे आ रहा है, आप देखते हो ना ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है, कई बार आप डर जाते हो। आपको डरना नहीं है, आपको उस सिचुएशन का सामना करना है। जितना आप डरोगे तो एज यूजुअल आप लूजर कहलाओगे। अगर आप सामना करोगे, जितने भी ऐसे लोग हैं अजनबी हमारे साथ उल्टे काम करते हैं, तो आप लोग जब उनका सामना करोगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आके कुछ भी कर जाए। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। सेकंड पॉइंट है, अगर आप रात को लेट नाइट ऑटो में या टैक्सी में कहीं जा रहे हो, ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है? ऑटो का नंबर नोट करना है, और जो भी आपके फैमिली वाले हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, कोई भी जिससे आप सारी बात शेयर करते हो, उनको कॉल करना है और उनको बताना है कि मैं इस ऑटो में हूँ, ये नंबर है और मैं यहाँ से लोकेशन से आ रही हूँ। 1% कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई आपका कॉल ही पिक नहीं कर रहा है, तब भी आपको घबराना नहीं है। अगर आपके फेस पे घबराहट दिख गई तो एज यूजुअल कुछ भी कर जाएगा बंदा, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, आपको फोन कान पे लगाना है, जस्ट इसको लगे आप बात कर रहे हो, आपको उनको पूरी फोन पे करते रहना है। हाँ मैं इधर पहुंच गई हूँ, इस लोकेशन पे हूँ, ये ऑटो का नंबर है। एज यूजुअल ऑटो वाले को लगेगा ये तो मेरी पूरी सिचुएशन बता रही है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, एक व्यू पॉइंट बता रही है कि ये ऑटो का नंबर है, तो वो ऑटोमेटिकली भाई जो भी ड्राइवर है वो घबरा जाएगा, वो सीधा आपको सिचुएशन जहां आपने जाना है वहां पे छोड़ेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, अगर आप लेट नाइट किसी भी लिफ्ट में जा रहे हो कहीं पे, भाई आप अपने घर गए हो, लिफ्ट है 12th मंजिल पे आपका मान लो घर है, और लिफ्ट में ही कोई भी स्ट्रेंजर है अजीब से, आपको पता चल जाता है, अंदर से हमारी इंस्टीट्यूशंस बोलती है ना यार यहाँ तो कुछ गड़बड़ी है, शायद कुछ करना दे वो बंदा, तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी बटन्स दबाने हैं। मान लो 12th फ्लोर है आपका, आप 1 फ्लोर की दबा दो, 3 की कर दो, 7 की कर दो, बीच बीच में करना है, क्योंकि हर फ्लोर की तो नहीं करोगे आप, बहुत टाइम लग जाएगा जाते जाते। जब आप बीच बीच में आप करोगे, बटन ओपन करोगे, हर फ्लोर पे रुकेगी जिसके भी आपने क्लिक किया, तो ऑटोमेटिकली उस बंदे को भी और आपको भी लगेगा हाँ भाई फ्लोर पे कोई ना कोई तो दिख जाएगा, कोई खतरा नहीं है, इजीली आप अपने फ्लोर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, अगर आप ऑटो या
टैक्सी में कहीं पे जा रहे हो और वो बंदा क्या करे, ड्राइवर सुनसान एरिया में ले जाता है आपको, या आपका रास्ता तो सीधा जाना है वो लेफ्ट में ले लेगा, आपको अंदर से वाइब्रेशन होगी, नहीं ये तो कुछ गड़बड़ी है, कहीं और लेके जा रहा है वो। तो आपको क्या करना है, आपके पास पर्स है, दुपट्टा है, आपको पर्स दुपट्टे से क्या करना है, कुछ भी एक चीज लो, ड्राइवर के गले में डाल के अपनी तरफ खींच दो। ऑटोमेटिकली वो घबरा जाएगा, ड्राइवर भी, स्टीयरिंग हिल जाएगा उसका, रोक देगा, ब्रेक मारेगा। ड्राइवर को भी तो अपनी जान प्यारी है, आपको है तो उसको भी है, वो ऑटोमेटिकली रोक देगा। अदरवाइज आपके पास ना पर्स है ना दुपट्टा है, तो आपको क्या करना है, आपको ड्राइवर का कॉलर पकड़ना, अपनी तरफ खींचना है और अपने हाथ से दबा दो उसका गला, पीछे को लो और चिल्लाओ हेल्प मी, या ये क्या हो, ये मेरे को सुनसान एरिया में लेके जा रहा है, कोई तो सुनेगा। जितना चिल्लाओगे, या स्टीयरिंग ही है उसका वो इधर उधर कर दो, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, आप अपने घर पे हो, आप घर पे हो, कोई भी पीछे से आता है बंदा, भाई आपके मम्मी पापा नहीं है, बाहर पता चल जाता है आज तो इसके घर पे कोई भी नहीं है, चलो आज चलते हैं घर पे। आपको अंदर से लगेगा हाँ घर में कुछ खन खन की आवाज आ रही, कोई तो आया है। बहुत सी मिसहैपनिंग्स होती है घरों में भी, पेरेंट्स नहीं होते हैं, बहुत से रिलेटिव्स ही होते हैं जिनको पता चल जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो उसमें भी आपको क्या करना है, आपको घबराना नहीं है, डर के किसी भी रूम में नहीं जाना, आपको सीधा किचन में जाना है। किचन में हमारे पास बहुत से सेफ्टी थिंग्स हैं हमारी, लाइक नाइफ, मिर्ची पाउडर, टर्मरिक पाउडर, बेलन है। अगर आपको तो पता है कि हाँ ये चीज मेरी यहाँ रखी है, भाई इस ड्रॉर में मेरा नाइफ है, कोई भी जो अजनबी आया है, चोरी करने आया है, कुछ भी करना है, उसको थोड़ी पता है, तो आप तो कर सकते हो। अदरवाइज आपको वो भी नहीं पता, आप थोड़े से डर जाते हो, नर्वस हो जाते हो, चीज नहीं मिल रही, नर्वस में हमें लगता है ना जल्दी जल्दी हम खोलते हैं, नहीं चीज मिलती, तो आप एक काम करो, प्लेट्स लो, गिरना शुरू कर दो, चिल्लाना शुरू कर दो। वो अपने आप, कोई भी चोरी करने भी आता है घर पे, डर जाता है ना जब आवाज आ जाती है, ऑटोमेटिकली भाग जाता है। आपको ये सारे रूल्स ध्यान रखने, कुछ भी होता है सिचुएशन, हमेशा सिचुएशन का सामना करो, घबराओ मत, जितना सामना करोगे ना उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी को कुछ पूछना है इनसे रिलेटेड, एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू सो मच।